Namaskar friends, welcome to RAS Utkarsh English. My name is Pooja Dwivedi and today we are going to talk about in detail what the High Court of Rajasthan has said about the duty of the Sarpanch and the Panchayat to stop child marriages. Child marriages राजस्थान में कोई नई चीज़ नहीं है. In fact, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में पता चला है कि बिटवीन द एज ऑफ 15 to 19 3.7% गर्ल्स या तो माँ बन चुकी हैं या तो वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं. इस तरह से हमें ये पता चलता है कि चाइल्ड मैरिज अभी भी राजस्थान में हो रही हैं डिस्पाइट मेनी लीगल एसेट्स, डिस्पाइट मेनी रूल्स एंड रेगुलेशंस. ये अभी तक हो रहा है. तो चलिए इसके बारे में जानते हैं. रिसेंटली क्या हुआ कि एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुई थी and this litigation was filed in order to stop marriages that were going to happen in mass on the day of Akshaya Tritiya. So Akshaya Tritiya, which is going to fall on 10th of May, इस दिन पे जनरली बहुत सारी जगहों पे शादी की जाती है. बट अगर हम राजस्थान की बात करें या और राजस्थान जैसे स्टेट्स की बात करें, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इवन यहाँ पे चाइल्ड मैरिजेस भी इस दिन पे बहुत ज़्यादा नोटिस की जाती हैं. छोटे छोटे टॉडलर्स 4 to 5 years ऑफ एज, इन छोटी उम्र के बच्चों की भी इस दिन पे शादी करा दी जाती है. तो अभी हाई कोर्ट ने, राजस्थान हाई कोर्ट में ये बोला गया है कि ये ड्यूटी है सरपंच की और पंचायत की कि सेंसिटाइज करना होगा लोगों को व्हाई एंड हाउ टू स्टॉप चाइल्ड मैरिजेस. ऑलराइट. ऑल्सो द राजस्थान हाई कोर्ट हैज़ अप्रिशिएटेड द एफर्ट्स ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कि आप भाई चाइल्ड मैरिजेस कम तो कर रहे हो, दैट्स अ डेफिनेट गो गिवन, बट इट्स नॉट एज सेटिस्फैक्ट्री जितना होना चाहिए. ऑल्सो द हाई कोर्ट हैज सेड दैट अंडर द राजस्थान पंचायत राज रूल्स, पंचायती राज rules, beg your pardon, the sarpanch and the panch, okay, the sarpanch and the panch should be sensitized and also informed that they have a duty to stop child marriages that are happening in a village. जब गांव में child marriages हो रही है तो इन लोगों की ड्यूटी होगी अंडर द सेक्शन 11, याद रखिएगा, सेक्शन 11 ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 2006. अगर इस एक्ट के इस सेक्शन के तहत ये फेल हो गए चाइल्ड मैरिजेस रोकने में, देन दे विल बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी. नाउ इफ आई टॉक अबाउट चाइल्ड मैरिजेस इन राजस्थान, since 2020 we are noticing there is a spike in child marriages. As I told you that 3.7% of women who have been surveyed between the age of 15 to 19, they are either pregnant already or they are already a mother. That means child marriages have happened in Rajasthan in a on a very mass scale. First is that, and after the COVID pandemic we are seeing or registering a rise in cases. Why is that? Because of course the certain personal beliefs are there. There is a certain personal belief system that children should be married according to the cultural needs of the community. Thereafter girls are also married off at an early age because financially burden बढ़ जा रहा है माँ बाप के ऊपर और उन्हें ऐसा लग रहा है कि लड़कियों को पढ़ाने से बेहतर है कि हम इनकी शादी कर दें, हम इनका ब्याह कर दें. So there is a lack of awareness about how many schemes have been initiated by the government of India as well as the government of Rajasthan about the care of a child who is a girl. इतनी सारी स्कीम्स शुरू की है. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के साथ धन लक्ष्मी स्कीम वॉज ऑल्सो स्टार्टेड. उसके बाद शगुन आशीर्वाद स्कीम वॉज ऑल्सो स्टार्टेड. बट ये सारी स्कीम्स की अवेयरनेस ही नहीं है. कल के दिन जब आप ब्यूरोक्रेट बनेंगे, इट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर that everybody knows how many schemes are there. A girl child is not a financial burden. So first is of course the cultural issues that are already there, cultural and social belief system, and social belief system is there, plus financial issues. This is a snippet from the Hindu paper, the Hindu newspaper, in which it has said that child marriage rears its ugly head in Rajasthan once again, and this is because of the issues that are there financially, culturally, and when there is a cultural issue इसको change करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है because culture is something जो आप बहुत लंबे समय से follow कर रहे हैं.
सो कल्चरली इट्स रियली रॉन्ग इफ़ इट इज़ बीइंग फॉलोड. ये तो बिल्कुल अवेयरनेस की कमी है, प्लस एजुकेशन की भी कमी होती है, एंड इट इज़ ऑल इंटर रिलेटेड. अगर एजुकेशन की कमी है तो गरीबी होगी तो गर्ल चाइल्ड विल ऑलवेज बी सीन एज अ बर्डन, somebody who could not be utilized properly in the economic well-being of the family, and thereafter it goes on and on and on. So this is the one problem. Prohibition of Child Marriage Act specifically says that any person who is a male member of the society, who is a male, cannot marry if they are not at least 21 years of age. So for men it has said 21 years of age should be there. For women it is 18 years of age. ठीक है. In fact under the section 16 of this particular act, it is mandated by the act itself that the state government has to appoint a child marriage prohibition officer. So a child marriage prohibition officer should be appointed so that they can look after the status of child marriage in their own states. तो 21 साल से अगर कम का कोई लड़का है या फिर 18 साल से कोई कम की लड़की है, they cannot marry according to the prohibition of Child Marriage Act of 2006. अगर हम बात करें नेशनल लेवल की, तो नेशनल लेवल में भी चाइल्ड मैरिजेस अभी भी रेगुलरली इंक्रीमेंट पे हैं. थोड़ा बहुत ही फ़र्क पड़ा होगा, बट कोविड-19 के बाद हमने देखा कि फाइनेंशियल बर्डन इतना ज़्यादा फैमिलीज़ के ऊपर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से दे आर थिंकिंग दैट दे शुड मैरी देयर गर्ल चाइल्ड एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम, बिकॉज डाउरी कौन फिर उसके बाद अरेंज करेगा, दहेज भी तो देना होता है भाई हमें, तो दहेज भी तो ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट है ना, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए ये कर रहे हैं. ऑफ कोर्स दहेज एक क्राइम है, एंड ऑफ कोर्स ये चीज़ें लोगों को भी पता है, बट नाउ इट इज़ बीइंग टाउटेड एज कि चलो गिफ्ट दे देते हैं. गिफ्ट तो दे ही सकते हैं हम अपनी बेटी को. दिस इज स्टिल ऑन गोइंग, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि अगर हम इसको कल्चरली और एज अ सोसाइटी नहीं फेस करेंगे, हम अगर इसको बार बार फ्लैग नहीं करेंगे, तो ये रेगुलरली चलता जाएगा. दिस हैपन्स इन द इंडियन सोसाइटी. सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू स्टॉप. दहेज, dowry is a crime, child marriage is a crime, and if you do not know it, and even if you know it and you do not want to flag it, then as a society we are failing. National Family Health Survey 5 ने कहा है कि child marriage in the country has decreased from 47.4% that was in 2005-2006 to 26.8% in 2015-16. Increase तो उतना नहीं है, spike नहीं है, decrease हुआ है basically, but satisfactory level पे नहीं है. ठीक है. A 21% decline has happened in the last 10 years. This is because of the many schemes जो government day by day और year by year ला रही है for the betterment of women. In the last 5 years, child marriage has declined by 3.5%. Higher level of child marriage रिपोर्ट की जा रही थी for girls with no और below primary level education. अगेन एजुकेशन का कितना संबंध है मैरिज से आप देख सकते हैं, मैरिज एज इन चाइल्ड मैरिज से. पहले तो आप देख लो, ये साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे कि हायर लेवल ऑफ चाइल्ड मैरिज वहाँ देखी गई हैं जहाँ पे लड़कियों को या तो कोई एजुकेशन नहीं दी गई है या प्राइमरी लेवल तक की एजुकेशन नहीं दी गई है. ये बताया गया है इसमें कि 48% जो लड़कियाँ विदाउट एजुकेशन या नो एजुकेशन के लिए मतलब दे हैवंट रिसीव्ड एनी सॉर्ट ऑफ एजुकेशन बी इट प्राइमरी और सेकेंडरी. 48% उन लड़कियों में से 18 साल से पहले मैरिज उनकी हो चुकी थी, और जिनको हायर एजुकेशन मिली है इसमें बस 4% है. तो एजुकेशन को किस तरह से आप मैरिज से, चाइल्ड मैरिज से कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको डेटा भी दिया गया है कि एजुकेशन एज यू कैन सी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि जितना ज़्यादा एजुकेटेड है एक लड़की उतने कम चांसेस है कि उसकी 18 साल से पहले शादी कर दी जाएगी. सो एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट. अदर दैन दिस हाईएस्ट चाइल्ड मैरिज जो नोटिस किया जा रहा है दैट इज इन द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरी. ऑल्सो 26% इनमें ऐसा देखा जा रहा है कि जितनी भी चाइल्ड मैरिजेस हो रही है पैन इंडिया 26% इस कैटेगरी से हो रही है. कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में देनी है कि गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव्स नेशनल लेवल या स्टेट लेवल पे कुछ लाती है तो वो भी जानना ज़रूरी है. राजस्थान की गवर्नमेंट ने अगर स्टेट लेवल पे कोई इम्पॉर्टेंट स्कीम लाई है इसके लिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में. धनलक्ष्मी स्कीम बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने शुरू कर दी थी 2008 में ही. मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट,
ये बेसिकली इंश्योरेंस है गर्ल चाइल्ड का, ये कैश ट्रांसफ़र के थ्रू होता है। कब से स्टार्ट हुआ है इसका लॉन्च, एक्चुअली कब हुआ था? इट वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 2008. देयर आफ्टर वी हैव द शगुन स्कीम आशीर्वाद, यानी शगुन आशीर्वाद स्कीम, दिस कैन बी कॉल्ड, दिस वॉज by the government of Punjab. In order to stop child marriages, the scheme assists reducing the percentage of child marriages in the state of Punjab. तो ये एक दो स्कीम्स मैंने बताई हैं, इसी तरह की स्कीम्स आप मुझे और बता सकते हैं. Now this analytical portion will be brought to you on a daily basis so that your preparation for Rajasthan Administrative Services can become stronger. Okay, so do tune to RAS Utkarsh English, and if you have any sort of constructive things that you want to say, you can do it in the comment segment. We will incorporate it accordingly. Thank you so much everyone. Stay updated.